Hi guys, in this video I'm going to teach the first chapter of CSR in social governance, that is corporate social responsibility. And the first chapter is for corporate social responsibility. Okay, so let us start with the first chapter. The contents of the first chapter are introduction, ancient history, applicability of CSR, United Nations Global Compact, International Organization for Standardization, CSR in Singapore, CSR in South Africa, CSR in United Kingdom, Asian CSR Network, CSR in Egypt, and then lesson roundup. Okay, so introduction may we haven't given so much, so we'll be doing just first para of the introduction. Economic growth is possible only through consumption of inputs available in the environment and society. The harnessing of natural resources has a direct impact on economy, the environment, and society at large. Corporate social responsibility is a concept whereby organizations serve the interest of society and by taking responsibility for the impact of their activities on customer, employees, shareholder, community, and environment in all aspects of their operation. Corporate social responsibility is not about just giving randomly, but about bringing benefits to all stakeholders, including customers, employees, and community at large. So it's just like an introduction, and some basic things are explained over here. So let us move to the main topic. The next topic is significance of CSR to sustainability of business. So here the first thing we should see is triple bottom line concept. Corporate social responsibility is the responsibility of an organization for impact of its decision on activities on society, environment, and its own prosperity, known as triple bottom line of people, planet, and profit. सो ट्रिपल बॉटम लाइन में होता क्या है? तो ट्रिपल बॉटम लाइन में इट्स अ थ्री इट इज़ बेस्ड ऑन थ्री टॉपिक, दैट इज़ पीपल, प्लानट एंड प्रॉफिट. तो ट्रिपल बॉटम लाइन जो है वो तीन चीज़ों पे बेस्ड होती हैं. पीपल आ जाता है, यानी कि उसमें आप उसको सोशल बोल सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो. प्रॉफिट यानी आपका जो मोटिव है पैसे कमाना, जिसलिए आपने ये बिज़नेस आपका खड़ा करते हो, प्रॉफिट. और प्लैनेट, आपको इन्वायरमेंट को भी सेव करते चलना है. तो ट्रिपल बॉटम लाइन का आपको एकदम बेसिक सा कंसेप्ट याद रखना है हमेशा. तो ट्रिपल बॉटम लाइन का आपको बेसिक सा कंसेप्ट हमेशा याद रखना होगा. पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट. पीपल यानी लोगों का भी हमको देखते चलना है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिज़नेस हमेशा सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट करना चाहिए बिज़नेस को. प्लैनेट, इन्वायरमेंट को हमेशा सेव करते रहना है, प्रोटेक्ट करते रहना है, और हमें साथ ही साथ अपना प्रॉफिट भी कमाते चलना है. इट इज़ ऑल अबाउट ट्रिपल बॉटम लाइन. तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक सा दिया हुआ था. सिग्निफिकेंस ऑफ CSR टू सस्टेनेबिलिटी बिज़नेस में दिया हुआ है. रिडक्शन इन ऑपरेटिव कॉस्ट, तो यानी हमारे CSR से क्या क्या हो सकता है, सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी. रिडक्शन इन ऑपरेटिव कॉस्ट, क्योंकि जब आप CSR करते हो तो आप ध्यान देते हो कि कैसे आप अपना सेव कर सको कॉस्ट. तो एक ऑपरेटिव कॉस्ट में भी रिडक्शन हो जाता है. इंक्रीज सेल्स एंड कस्टमर लॉयल्टी. सेल्स क्यों आपका बढ़ता है? क्योंकि कस्टमर ऑल्सो रिकग्नाइज दोज कंपनीज विच आर सोशली रिस्पॉन्सिबल. तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनीज होती है उसको कस्टमर्स ज़्यादा रिकग्नाइज़ करते, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसी कंपनीज़ की तरफ. इसकी वजह से सेल्स इंक्रीज़ होती है और कस्टमर लॉयल्टी भी आ जाती है. ओके और फिर है हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी. हायर प्रोडक्टिविटी क्वालिटी कैसे आती है? कंपनी एज एन एसेंशियल ऑफ इट्स ट्रिपल बॉटम लाइन फोकस ऑन इम्प्रूविंग द वर्किंग condition of its employees, people in its supply chain distribution, which helps in increase productivity, better quality.
Company as an essential of its triple bottom line focus on improving working condition of its employees. क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ CSR कंपनी को, एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन कंपनी को फोकस करना पड़ता है अपनी कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय के लिए। तो इससे क्या हो जाती है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है, प्रोडक्टिविटी और जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है काम की। ओके, एक्सेस टू कैपिटल ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रांड इमेज अच्छी हो जाती है तो कैपिटल अच्छा मिलता है। जैसे आप CSR करते हो तो आपकी ब्रांड अच्छी होती है, लगती है, आपको कैपिटल मिलने लगता है। The companies with strong CSR have increased access to capital that might not otherwise have been available, even though the lending institutions are cautious and are considering this as important parameter of granting loans। ठीक है, तो CSR को एकदम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है लोन ग्रांट करने के लिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो CSR कर रही होती है वो अच्छी होती है, दे आर मोर गिविंग टुवर्ड्स सोशल इश्यूज। ओके, बूस्ट इन ब्रांड इमेज, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही। CSR is an essential brand building tool used by companies to enhance its reputation among the shareholders। Okay, बेसिक थे पॉइंट्स, आपको जस्ट रीड करते रहना है। CSR इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग। ओके, बिकॉज आप इसको मगअप तो नहीं कर सकते, क्योंकि यू डोंट हैव टू लर्न, यू हैव बुक इन योर एग्जाम, इट्स ओपन बुक सब्जेक्ट। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ CSR हम देखे जाएंगे तो फर्स्ट पैरा आप कर लो and just do this table, and that's I think enough, because there's not like a pointers, इसमें pointers नहीं दिया हुआ है और मोस्टली हमें pointers वाले क्वेश्चन पे फोकस करना होता है। The concept of CSR is not new in India. Concept can be traced back to times immemorial, or our Vedas say man can live individually but can survive only collectively. Hence the challenge is to form a progressive community by balancing the interest of individual and that of the society. To meet this, we need to develop a value system where people accept modest sacrifices for the common good. Value system is the protocol for behavior that enhances the trust, confidence and commitment of members of community, goes beyond the domain of legality। Okay, एकदम बेसिक से पॉइंट्स हैं, बट वन थिंग विच रियली वांट टू सजेस्ट टू यू ऑल, कि आप प्लीज़ हर एक कंसेप्ट में जो पैरा होता है, फर्स्ट पैरा होता है, हर एक भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड CSR हो गया, उसका फर्स्ट पैरा आपको रीड करना ही करना है, बिकॉज एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको टॉपिक नहीं देंगे ऐसे लिख के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ CSR, बट वो ऐसे लिख के देंगे कंसेप्ट ऑफ CSR इज़ नॉट न्यू इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो आपको याद होना चाहिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर है, कभी कभार वो बीच से भी पूछ लेते हैं। ओके, तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा तो नहीं, यू जस्ट हैव टू रीड एवरीथिंग एंड लाइक यू शुड नो व्हाट थिंग्स आर वेयर, व्हाट थिंग्स आर वेयर, आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। हम लास्ट पैरा भी एक बार रीड कर लेते हैं। द 21st रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस is one of the prime movers for bringing the CSR provision within the statute. It